آج سپریم کورٹ میں وقف قوانین کو لے کر مرکزی حکومت کے نئے وقف قوانین کے خلاف آج سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس آسٹن جارج مشی کی قیادت والی بینچ میں سماعت ہوئی۔ آج کی سماعت کے دوران نئے وقف قوانین کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کے وکلاء تھے کپل سبل، منو سنگھوی اور حذیفہ احمدی جیسے وکلاء نے اپنی دلائل آج رکھے۔ آج کی سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے یہ درخواست کی چیف جسٹس سے کہ پورے قوانین پر بحث کرنے کے بجائے اس قانون کے تین اہم بندو پر بات کی جائے۔ پہلا بندو تھا وقف بائی یوزر، دوسرا غیر مسلم کی شمولیت ممبر میں، مسلمانوں کے علاوہ دیگر کمیونٹی کے وقف بورڈ کا ممبر بننا، اور تیسرا اس قوانین کے آئینی جواز پر بحث کی جائے۔ لیکن کپل سبل نے اور منو سنگھوی نے دلیل دیا کہ اس طرح کے معاملے میں کہ پورے قانون پر بحث کی جائے، اور آپ نے انہوں نے سنجیو کھنہ کی سابق چیف جسٹس ہے ان کی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس کھنہ نے کہا تھا کہ پورے وقف قانون پہ بات کی جائے گی، اس لیے پورے قانون پہ بات کی جائے۔ دوسری طرف چیف جسٹس بی آر گوئی نے ایک اہم بات کہی۔ بات یہ کہی انہوں نے کہ جب کوئی قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے، وہ قانون میں آئینی جواز کو پارلیمنٹ جب بھی کوئی قانون پاس کرتا ہے تو اس قانون کو پاس کرنے کے وقت اس کے آئینی جواز کا ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آئین کے ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اب جب کہ نئے وقف قانون کو کہ آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ درخواست دہندگان اس کے بارے میں پختہ ثبوت لے کر آئے۔ دوسری جانب کپل سبل، منو سنگھوی نے ان تمام اس مسئلے پہ دلیل دیا کہ کس طرح آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے کپل سبل نے کہا کہ نئے وقف قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی آثار قدیمہ میں ASI کے ذریعے چلا جاتا ہے تو وہ پراپرٹی وقف نہیں رہتی ہے۔ تو پھر چیف جسٹس بی آر گوئی نے پوچھا کہ کیا آثار قدیمہ میں چلے جانے کے بعد کیا اس میں آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ کپل سبل نے کہا کہ نہیں، اس کا اختیارات ختم ہو جاتا ہے۔ پھر گوئی نے ایک مندر کا بھی ذکر کیا کہ وہ مندر ہے وہ آثار قدیمہ کے تحت وہاں پوجا کی جاتی ہے۔ تو کپل سبل نے اس کا جواب دیا کہ آرٹیکل 25 میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے عبادت خانوں کو بنانے، اس کو چلانے، اس کے لیے انتظام و انصرام کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ اس بات کو نوٹ کیا جائے اور آرٹیکل 25 کو نوٹ کیا جائے کہ کیا درخواست دہندگان آرٹیکل 25 کی بنیاد پر اس پورے قانون کے آئینی جواب سوال کھڑا کرے درست ہے یا نہیں، اس کو نوٹ کیا جائے۔ آئیے آج ہم آپ کو 10 اہم بندوؤں میں، چونکہ آج کل بھی سماعت ہوگی، کل مرکزی حکومت کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ آج جو درخواست دہندگان کے وکلاء نے جو باتیں رکھی ہیں اس کے 10 اہم پوائنٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو 4 گھنٹے تک پہلے ظہر کے بعد بھی سماعت ہوئی، اس کے دوپہر میں بھی، پھر دوپہر کے وقفے کے بعد پھر بھی سماعت ہوئی، کل 4 گھنٹے تک وقف قانون پر سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران 10 اہم جو دلیلیں دی گئی ہیں ان دلیلوں پہ ہم آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ سینئر ایڈوکیٹ ابھی سنگھ منو سنگھوی نے یہ ہندوستان کے دوسرے کسی مذہب میں یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ 10 سال یا 5 سال اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہو تو ہی اپنے مذہب کے لیے عطیہ کر سکتا ہے۔ مطلب کوئی آدمی ہندو مندر کے لیے زمین دان کرنا چاہے تو اس کا یہ بات جانچ نہیں کیا جائے گا کہ وہ 5 سال سے ہندو ہے، 10 سال سے ہندو ہے۔ لیکن نئے وقف قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کم سے کم 5 سال کا پریکٹسنگ مسلم ہو، مطلب پریکٹس کرنے والا مسلم ہو، وہی وقف کے لیے عطیہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پریکٹسنگ مسلم کا کیا ثبوت ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مطلب پریکٹسنگ مسلم یہ کہ جو داڑھی رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھا ہو، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو ابھی سنگھوی نے پہلی دلیل یہ رکھی کہ یہ قانون، جو نئے وقف قانون، غلط اس لیے ہے کہ تفریق والا قانون ہے، بھید بھاؤ والا قانون ہے کہ ہندو جو ہے کوئی بھی ہندو وقف کر سکتا ہے اپنے مندر کے لیے، کوئی بھی سکھ کر سکتا ہے، کوئی بھی عیسائی اپنے گرجا گھر کے لیے وقف کر سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہے نہیں۔
अभिषेक मनु सिंघवी ने दूसरी अहम दलील ये रखी है कि वक्फ अब जो नया कानून बना है उसमें कहा गया है कि तमाम वक्फ जायदाद का असर नो रजिस्ट्रेशन होगा। मनसूर सिंघवी ने कहा कि इससे एक तरह का दहशत का माहौल हो गया है और कागज दिखलाओ और अपने अपने शहर साबित, उस तरह का सवाल पैदा हो गया है और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है। दूसरी तीसरी अहम दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही रखी वक्फ बाय यूजर को लेकर। उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया है। नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया है। इसकी वक्फ बाय यूजर मतलब ये कि ऐसी कोई जायदाद, ऐसा कोई मस्जिद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन कई सौ साल से, सही सालों से उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, उसको लिए कोई एतराज भी नहीं है, तो नए कानून के मुताबिक उसको वक्फ जायदाद नहीं माना जाएगा। सपोज कर लीजिए कि कोई एक मस्जिद है यहाँ पे, वहाँ पे 50 साल से लोग, 100 साल से यहाँ पे नमाज हो रही है। अब चूंकि लेकिन उसके बावजूद ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ इमलाक के तौर पे, तो अब ये कहा जाएगा कि नए कानून के मुताबिक ये वक्फ की मस्जिद नहीं रहेगी। तो ये अबू सिंह मनवी ने कहा कि इस तरह से दहशत का माहौल हो जाएगा और अपनी जायदाद को लेकर इंसाफ मांगना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि एक गैर जरूरी तौर पर तनाज़ा खड़ा किया जाएगा। तनाज़े में कहा गया है कि जब कलेक्टर जांच करेगा कि वक्फ जायदाद है या नहीं है, और जब कलेक्टर जांच करेगा कि नहीं है, उस वक्त कलेक्टर की जांच मुकम्मल नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक कोई वक्फ इमलाक नहीं रहेगा। तो वक्फ बाय यूजर का ये नुकसान है। चौथी दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि नई तरमीम का सेक्शन 3D वक्फ इमलाक पर भी ASI का आसार कदीमा का कानून नाफिज होगा। अब ये बोल रहे हैं लाइसेंस ऑफ द वर्कशिप एक्ट जो है 1991 का, उसके मुताबिक अब कोई भी जब आसार कदीमा के तहत कोई मस्जिद चली जाती है, कोई जगह चली जाती है, तो वो उनके कब्जे में चला जाता है, वहां नमाजें नहीं हो पाती है और वहां तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राजू धवन ने 5वीं दलील रखी, मजहबी मलकियत, जो मजहबी मिल्कियत है उसकी तारीफ क्या होगी। बरतानवी दौरे हुकूमत में नहीं बदला गया था। भारत एक सेकुलर मुल्क है। अब ये कहा जा रहा है कि कोई सिख मुसलमानों के लिए वक्फ नहीं कर सकता है, कोई हिंदू चाहे तो मस्जिद के लिए जमीन नहीं दे सकता है। इस तरह के कानून जो है, ये कानून मुल्क के सेकुलर ढांचे के लिए नुकसानदेह है। और छठी दलील राजू धवन ये कहते हैं कि जो कदीम बल्कि पुराने जो वक्फ कवानीन है उससे मुताबिक माजी में आईनी बेंच कई फैसले दे चुकी है। बाबरी मस्जिद का मामले में भी पुराने वक्फ कानून को मलहूज़ नजर रखा गया था और तमाम बेशतर अदालतों ने वक्फ बाय यूजर की बुनियाद पर, उस जायदाद को वक्फ तस्लीम किया था। तो राजू धवन सवाल करते हैं, माजी में अदालतों ने उन जायदादों को वक्फ जायदाद तस्लीम किया है जो वक्फ बाय यूजर है, मतलब वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन कई सालों से, कई सदियों से या फिर कई दिहाइयों से उस पर नमाज होती रही है और लोग उसको मस्जिद तस्लीम करते रहे, तो अदालतें इस मामले में उसको मस्जिद तस्लीम किया है या वक्फ तस्लीम किया है। लेकिन अब नए कानून के बाद, वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाने के बाद, अब वो मस्जिद नहीं रह पाएगी, कोई आदमी इतराज कर देगा। 7वीं दलील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ASI की एक वेबसाइट को खोला कोर्ट अदालत के सामने और ये बतलाया कि ये ASI की जायदादों की फहरिस्त, उसमें कई वक्फ की जायदाद आ जाती है और उसके नए जो कानून बनाया गया है उसमें जब कोई जायदाद वक्फ ASI के माध्यम में चली जाएगी, मतलब किसी जायदाद को जब आसार कदीमा, महकमा आसार कदीमा कहेगा कि ये इमारत आसार कदीमा में से है, तो अब वो इमारत जो है वक्फ नहीं रहेगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस संभल की जामे मस्जिद जिसका तनाज़ुर चल रहा है उसको महकमा आसार कदीमा ने कहा कि ये आसार कदीमा है। अब इस कानून के तहत संभल की जामे मस्जिद जो है वो वक्फ के मातहत में नहीं रहेगी। अब हुकूमत के महकमे आसार कदीमा के तहत चला जाएगा और आसार कदीमा जिस तरह से चाहेगा उसको, उसकी नोयत को तब्दील कर सकता है या उसकी मिल्कियत को भी तब्दील कर सकता है। और उन्होंने कहा कि 8वीं दलील जो है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ 3 मौजूए पर, जैसे मैंने माजी में पहले बताया कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की तकर्री को लेकर और कवानीन के आइनी जवाज़ को लेकर पर बहस महदूद किया जाए। तो उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे वक्फ कानून पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस
संजीव खन्ना के रिमार्क्स का भी हवाला दिया, उनके फैसलों का भी हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि इस अर्जी के समाअत के दौरान संजीव खन्ना ने कहा था कि पूरे वक्फ कानून पाँच दरख्वास्त दहंदगान की दरख्वास्त पर पूरे वक्फ बाई यूज़र पर समाअत होगी। 9वीं दलील में कपिल सिब्बल ने कहा कि इस नए कानून में मुसलमानों से वक्फ जायदाद को चलाने का हक छीन लिया गया है, और उन्होंने कहा कि मरकज़ी वक्फ कौंसिल के बेशतर अरकान गैर मुस्लिम होंगे, और नए कानून की दफ़ा 9 उसमें के मुताबिक कि कुल 22 मेंबर होंगे। 22 मेंबर में से 12 जो है गैर मुस्लिम होंगे, 10 मुस्लिम होंगे। तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जब 12 जब गैर मुस्लिम होंगे तो अगर अक्सरियत हो जाएगी उधर, तो मुमकिन है कि किसी जायदाद के बारे में फतवा करते वक्त मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ फैसला कर लिया जाए, और मुसलमानों को अपना वक्फ जायदाद को चलाने का हक नहीं छीन लिया गया। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि यह आइन के बुनियादी दफात के खिलाफ है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 जो अगर देखा जाए, जिसमें साफ लफ्जों में कहा गया है कि मुसलमानों को अपने किसी मजहबी इबादत खाने कायम करने, मजहबी इदारे कायम करने की, मुसलमान नहीं, इस मुल्क के हर एक शहरी को, हर एक अक़लियत को, हर एक शहरी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके को हो, उसको अपने मजहब पर अमल करने या फिर मजहब के मुताबिक इबादत खाने बनाने की आम इजाज़त है और उसको चलाने की भी रियायत है। लेकिन अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस नए कानून के बाद अब चूंकि अक्सरियत गैर मुस्लिमों की हो जाएगी, तो जाहिर बात है कि इसको मुसलमान नहीं चलाएंगे। तो ये आइन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ ये कानून है। और 10वीं दलील जो है हुज़ैफ़ा अहमदी ने दी, उन्होंने कहा कि ये जो शर्त लगाई गई है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग करता हुआ, अमल करता हो, तो बोले, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है कि कौन 5 वक्त नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, कौन ज़कात देता है या नहीं देता है, कौन रोज़ा रखता है या नहीं रखता है, कौन हज किया है नहीं किया है, ये फैसला हुकूमत कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान की तारीफ नए कानून में नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या हुकूमत के सवाबदीद पर छोड़ दिया जाएगा? मान लीजिए जैसे एक शख्स है, एक मुसलमान वक्फ करने जा रहा है, तो हुकूमत के सवाबदीद पे है कि वो हुकूमत तय करेगी कि ये शख्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है। चूँकि इस नए बिल में प्रैक्टिसिंग मुसलमान की कोई तशरीह नहीं की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि 1 दर्जन से ज़ायद इस पूरे वक्फ कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात दायर किए गए हैं। केरला की एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस कानून के ख़िलाफ़ अपील दायर किया है, और बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला ने भी इस मामले में फ़रीक बनकर कानून की वकालत की है। अब देखना ये कि कल वाली समाअत में यानी 21 मई की समाअत के दौरान तुषार मेहता इन तमाम 10 दलील जो अपोजिशन की तरफ से दिए गए हैं उसका क्या जवाब देते हैं और अदालत का क्या रुख होता है। लेकिन आज नए चीफ जस्टिस आर गवई ने इशारा कर दिया है कि इस कानून की आइनी जवाज़ को जांचने में वो सख्त पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, इसलिए किसी भी पार्लियामेंट से पास कानून को जवाज़ के जांचने का पैमाना भी सख्त रखा जाएगा, ताकि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं हो। लेकिन सवाल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी या पार्लियामेंट की बरतरियत का नहीं है, सवाल इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों के मजहबी इबादत खानों का है, सवाल 20 करोड़ के मुसलमानों की इबादत मदरसों का है, सवाल 20 करोड़ मुसलमानों के वक्फ जायदाद का है कि उसकी हिफाजत कैसी की जाएगी। और कपिल सिब्बल ने अपने जब दलील दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि ये कानून तो बज़ाहिरी तौर पे वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस कानून की आड़ में वक्फ जायदाद को छीनने की कोशिश की जाएगी, और ये कानून वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचा सकती है और मुसलमान वक्फ जायदाद से महरूम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।